50 crore will be eligible to avail this incentive. Maximum limit of incentive is Rs 5 crore and Rs 7.5 crore in Zone A and Zone B respectively. Second is capital interest subvention at the annual rate of 6% for maximum 7 years on loan amount up to rupees 500 crores for investment in plant and machinery in manufacturing or construction of building and all other durable physical assets in service sector also. Third is GST limited incentive. Financial incentive based on gross GST. This will incentive output up to 30% of the eligible value of actual investment made in plant and machinery, in manufacturing or construction in building and all other durable physical assets in service sector for 10 years. However, amount of incentive in a financial year will not exceed 1/10 of the total eligible amount of incentive. Fourth is working capital interest incentive. All existing units at the annual rate of 5% for maximum 5 years. Maximum limit of incentive is Rs 1 crore. Friends, the new Industrial Development Scheme 2021 covers new investment as well as substantial expansion of existing units. Besides, while encouraging new investment, the scheme also nurtures the existing industries in Jammu and Kashmir by interest subvention on working capital. The scheme has been simplified on the lines of ease of doing business by bringing one major incentive, GST-linked incentive, that will ensure less compliance burden. The quantum of assistance is much higher in the proposed scheme as compared to the earlier scheme, as the GST-linked incentive alone provides for a maximum of 3 times of investment made in plant and machinery. In addition to this, capital incentive and capital interest subvention is also provided. Under the capital interest subvention, interest amount for a sum of maximum 500 crore for investment in plant and machinery is provided. This will help in attracting large investments in the UT of Jammu and Kashmir, and this was shortcoming of the earlier schemes. Friends, in brief, I must reiterate that the first time any industrial incentive scheme of such a large scale is taking the industrial development to the block level of this UT. This will give economic impetus to underdeveloped areas also. As I have said earlier, the scheme aims at development of manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir, and while encouraging new investment, also nurtures the existing industries in Jammu and Kashmir by providing them working capital support at the rate of 5% for 5 years. I must tell you, the new scheme has been made attractive for both MSME by capital incentive as well as larger units by a liberal capital interest subvention component. It is also important to note that under the present scheme, entire registration and processing of the claims is delegated to the Jammu and Kashmir government, which was earlier, it was vested in central government. Hence, the new scheme emphasizes greater role of the Jammu and Kashmir in registration and implementation of the scheme, while having proper checks and balances through an independent audit agency before the claims are approved. Friends, there are major impacts of new Industrial Development Scheme 2021, and in brief, I would like to tell you, the main purpose of the scheme is to generate employment, which directly leads to balanced socio-economic development of the region. Employment generation is the underlying theme of this scheme, which in turn will give a boost to holistic and balanced development of Jammu and Kashmir. The core objective and vision of the scheme is to lay a special emphasis on sustainable development
by creating a favorable ecosystem for new investment as also fostering the existing partners of growth. The scheme will attract unprecedented investment and create direct and indirect employment. This will not only maximize the growth opportunities by optimum utilization of available resources, but also shall create backward and forward linkages. This will help in harnessing the talents, skills, and resources of people and area, thereby ushering an era of prosperity at the grassroots level. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in national development. The scheme intends to bring about radical transformation in the existing industrial ecosystem of Jammu and Kashmir with emphasis on job creation, skill development, and sustainable development by attracting new investment and nurturing the existing ones, thereby enabling Jammu and Kashmir to compete nationally with other leading industrially developed states or UTs. The key sectors which can attract investment because of the new policy are food processing, handloom, silk and wool processing, wood processing, handicrafts, pharmaceuticals, healthcare, wellness, tourism and hospitality, media, ITs and entertainment, environmental services, logistics, animal husbandry in case of service sector. The new scheme ensures less compliance burden without compromising on transparency. Friends, we have taken supportive steps for creating industrial ecosystem in both Jammu and Kashmir division. Focus areas have been prioritized for investment and Government of Jammu and Kashmir has finalized 13 sector-specific policies for wooing the investors based on local potential. For the purpose of investment, a substantial land bank in both Kashmir and Jammu region of more than 3,000 acres have already been created by the government of J&K, which shall meet out the demand for the land allotment to the new industrial entrepreneurs. For utilization of land bank in a judicious manner, a new industrial land allotment policy is also in the making, which aims at equitable and balanced industrial development in all areas of J&K. Post reorganization of J&K, the restrictions on the use of private land to the industrial promoters has been done away, with which will help in industrial development on private land also. The government of J&K has also modified 138 laws and repealed 164 laws with an objective to create an industry-friendly ecosystem. मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक क्वांटम जंप जम्मू कश्मीर की यूटी कर रही है। आपको ध्यान होगा 26 दिसंबर को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत सेहत की योजना का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए किया। हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इलाज के लिए मिले, इसका प्रबंध जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। आपने देखा 3 जनवरी को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी यहाँ थे। मोटे तौर पर 3450 मेगावाट हाइड्रो पावर बनाने का काम हम आने वाले 4 वर्षों में पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आपके बीच कि कई गैप्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास तौर से पावर सेक्टर के। मैं खुद महसूस कर रहा हूं, आप सब भी देख रहे हैं जम्मू में। इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं। मैं किसी की आलोचना में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस काम पर हम जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जल्दी ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठा करके इस काम को समय सीमा के भीतर भी हम पूरा करेंगे। अगर सड़क की मैं बात करता हूं तो मैं गर्व से आज कह सकता हूं कि देश के सभी राज्यों की तुलना में इस वर्ष जम्मू कश्मीर
पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। पिछले वर्षों में जो अलॉटमेंट रहा है, जो फंड एलोकेशन रहा है, 3 गुना से ज्यादा वृद्धि सड़क के मामले में हुई है। और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 250 आबादी के जो भी गांव हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन सबको जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी। और आने वाले 2.5-3 वर्षों में एक भी गांव यहां का नहीं होगा जो सड़क से नहीं जुड़ जाएगा। एक और योजना लेकर के हम लोग चल रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क, पॉट होल फ्री रोड्स। जम्मू और श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं या सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, या कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं या कई धार्मिक स्थान हैं, जहां तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए। और ये काम भी हम, जम्मू का काम मुझे लगता है कि फरवरी एंड तक हम शुरू कर लेंगे। कश्मीर डिवीजन में मुझे लगता है कि मई में काम शुरू करेंगे और 2 महीने में उस काम को भी खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो हमारी मेजर रोड्स हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, उसके लिए भी भारत सरकार 2500 किलोमीटर सड़कों के विशेष मरम्मत के लिए जम्मू कश्मीर को धन देने जा रही है। तो मैं गर्व से बात कर सकता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि सड़क विभाग ने जिस तरह से पिछले 4-5 महीने में काम को गति दी है और जो प्लान बनाया है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हर गांव को सड़क से जोड़ने का सपना हम पूरा कर सकेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था कि जम्मू और श्रीनगर की मेट्रो भी 2023 में हकीकत बनेगी और सभागार में बैठे हुए लोग 2023 दिसंबर में मेट्रो में सफर करके जम्मू की यात्रा कर सकेंगे। इस काम को भी हम अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बात मैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की करना चाहता हूं। अभी तक मैं पिछले 2-3 सालों में काफी प्रयास हुआ है और मैं कह सकता हूं कि हाई डेंसिटी एप्पल 170 हेक्टेयर अभी तक लगा है। इस साल 200 हेक्टेयर लगाने का प्लान है। नेफेड के साथ हमने एक MOU साइन किया है जिसमें 5 साल में 5000 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल लगाने का प्लान हमने बनाया है। और केवल ये कश्मीर में नहीं, जम्मू के भी विभिन्न जिलों में एप्पल की पैदावार हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। सैफरन को जियो टैगिंग मिल गई है। बाकी जम्मू क्षेत्र के एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और फ्लावर्स और बाकी चीजों को भी जियो टैगिंग मिले, इसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का भी एक बड़ा MOU हमने नेफेड के साथ साइन किया है और इस पॉलिसी के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारी इन्वेस्टमेंट आएगा। पानी की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, हर घर नल से पानी, उसको भी काफी गति दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 वर्षों में हर घर तक नल से पानी और पोर्टेबल वाटर, स्वच्छ पीने लायक पानी पहुंचाने में हम समर्थ होंगे। इस तरह से मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि हर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट, यूथ एंगेजमेंट का भी बड़ा प्रोग्राम हम सब ने किया है। आज अवसर नहीं कि मैं लंबा इस पर भाषण करूं, लेकिन हर सेक्टर में हम लोग क्वांटम जंप लेने की स्थिति में हैं। और एक बात कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की हर कोशिश हम सब मिलकर के करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी ने जो 2 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, मुझे लगता है कि वर्षों से जो खेत हमारे सिंचाई से वंचित थे, उनको आने वाले 4 वर्षों में पानी पहुंचाने में हम समर्थ होंगे। मोटे तौर पर एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सब आए। उस दिन मैंने कहा था कि फिर मिलेंगे और अंत में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जरा सा कतरा नहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजों में बात करता है। जमी की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। इसमें जैसे बताया गया कि नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंसेंटिव्स की बात की गई है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए, बट साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स करेंगे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, उन लोगों के साथ इसको कैसे साथ मिलके इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम नहीं है कि बस गवर्नमेंट ने करना है। इसमें
इंडस्ट्री के लोगों को सामने आना पड़ेगा। जो सजेशंस होंगे कि सिस्टम कितना सिंप्लीफाइड हो, कितना इजी हो, ताकि इस स्कीम का फ़ायदा उठाया जा सके, उनके साथ बैठ के हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत विस्तार में सारी डिटेल्स आपके सामने रखी गई। हम राइटिंग में भी इसके डिटेल्स सर्कुलेट करेंगे आपके साथ। जो स्कीम की फर्दर डिटेल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हैं, वो भी हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। पर अभी मैं जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि जम्मू कश्मीर में सर्विस सेक्टर को उतना, आपने देखा होगा बड़ी ब्राह्मणा, सांबा, कुछ एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ आई हैं, लेकिन दो चीज़ें मिसिंग थी। एक, सर्विस सेक्टर को कभी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो बेनिफिट नहीं मिला या क्लैरिटी नहीं मिली। और हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सर्विस सेक्टर, जिसमें टूरिज्म आता है, आईटी सेक्टर आता है, कुछ और एनिमल हस्बेंड्री और इस तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं। तो वो एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप है जो ये नई स्कीम फिल करेगी। दूसरी चीज़ जो इसमें बिल्कुल साफ तौर पे सामने आती है वो ये है कि आप लोगों ने देखा कि हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ इलाकों तक ही बन के रह गया। कश्मीर की बात करें तो रंगरेट में, लसीपुरा में और दो चार जगहों पे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आए और इन्वेस्टमेंट्स हुए। और इसी तरीके से जम्मू में जैसे कुछ कठुआ में, कुछ सांबा में और बहुत छोटे स्तर पे उधमपुर में हुआ। लेकिन राजौरी, पुंछ जैसे इलाके, चिनाब वाली वैली वाले इलाके, कश्मीर के कुपवाड़ा और इस तरीके के इलाके जो हैं, वहाँ के यूथ जो छोटी यूनिट्स लगाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, उनके लिए डिसएडवांटेजेस थी, लोकेशनल डिसएडवांटेजेस थी। ये स्कीम उस लोकेशनल डिसएडवांटेजेस को दूर करेगी, उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स देके, और हम ये कोशिश करेंगे कि उनको प्रायोरिटाइज भी किया जाए। इसी तरीके से बहुत सारे यूथ्स जो हैं वो सामने आते हैं और कहते हैं कि अब हमें समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबको नहीं मिल सकती है, पहले ही ओवर एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट की नौकरियां आसानी से नहीं मिल रही हैं। तो हमें सेल्फ एम्प्लॉय होकर ना केवल अपने रोजगार की तैयारी करनी है, बल्कि 4 लोगों को और रोजगार देना है। तो इस डायरेक्शन में जो मिशन यूथ का भी काम चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उससे रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसकी कन्वर्जेंस भी जो है वो हम इस स्कीम के साथ लाएंगे, ताकि ये स्कीम 2037 तक है, यानी कि 17 साल के जो ड्यूरेशन में हम ये उम्मीद करते हैं, बल्कि उम्मीद करते हैं इसी डिकेड में, इस अगले 9 साल में, इस डिकेड में हम यहाँ के यूथ को एक नई इकोनॉमिक विजन दे सकें, एक नई इकोनॉमिक एनर्जी दे सकें, जिसमें उनका इंगेजमेंट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट मिले, और हमारे यूथ कहीं पे भी टैलेंट में कोई कमी नहीं है। आज कश्मीर के यूथ, जम्मू के यूथ हमने देखा है आईटी सेक्टर में आगे आ रहे हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के आइडियाज़ लेके सामने आ रहे हैं, स्टार्टअप्स के आइडियाज़ हमारे सामने आ रहे हैं। इस तरीके की स्कीम जो उनको इंसेंटिवाइज करेगी, तो मुझे उम्मीद है कि एक नई दिशा जम्मू कश्मीर को मिलेगी। क्योंकि स्कीम के सारे डिटेल्स बताए जा चुके हैं, इससे ज़्यादा डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे साथ कभी भी संबंध कर सकते हैं। आप लोगों से सबसे बीच बीच में मिलना होता रहता है।